Okay, so last week we actually stopped at this slide, so we'll continue from here. Arithmetic logic and logic instructions जो है and programs and 8051. सबसे पहले we have add A with the source. So the source can be a register, it can be a memory address, or it can be data. So with this instruction, the source can be added with the accumulator and the results are going to be stored in the accumulator. So this is just one instruction where we transfer this value to accumulator, and when you say add A hash 0BH, so it will add these two and will give you the result. It's just simple addition, right? In this case, you will also get a carry because when you add these two, the result is 0, but you'll get a carry as well. A simple addition hai. We have discussed it in microprocessor as well. Controller mein is almost the same. Then we have a small program. Assume that RAM location 40 to 44H have the following values. So these are 5 different bytes. Write a program to find the sum of these values. So we have to write down a program that can add all of them. At the end of the program, register A should contain the lower byte and R7 the higher byte. Remember, हमने जब addition discuss की थी, there was addition with ignoring carry and there was addition with considering carry. तो जिस केस में हमने carry को consider किया था, carry के लिए फिर हमने एक extra register B यूज किया था प्रोसेसर में. तो ये प्रोग्राम एग्जैक्टली उसी तरह है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल एड्रेस को जो है हमने R0 में डाल दिया. तो यहाँ पे R0 को हम एज ए मेमोरी पॉइंटर के तौर पे यूज कर रहे हैं. R2 को हम टू काउंट द नंबर ऑफ बाइट्स. फिर हमने एक्यूमुलेटर को क्लियर किया, उसकी वैल्यू 0 की. ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि एक्यूमुलेटर से हमने R7 को भी क्लियर किया, इसलिए कि R7 में हम हायर बाइट स्टोर करना चाह रहे हैं. ठीक है. Then we start adding the data represented by R0. So R0 जिस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है उसका डेटा हमने A में ऐड कर दिया. तो फर्स्ट बाइट इज दिस वन 840H, वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा. फिर हम चेक करते हैं कि कोई कैरी तो जनरेट नहीं हुआ. अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हम R7 को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे. अगर कोई कैरी जनरेट हुआ है तो हम R7 को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि वो कैरी को काउंट करें, which represents the higher byte. After this, we increment R0, mean next memory location पे जाते हैं, which is 41. ठीक है, उसके बाद we check out के सारे bytes add हो गए या नहीं, and we repeat the process. So let me repeat this whole program again. हमने 5 bytes को add करना है, starting from memory 40H to 44. So we need someone to keep track of the memory. उसके लिए हमने R0 यूज किया. Someone to count the number of bytes, that is R2. Someone to store the results, that is accumulator and R7. So accumulator में lower byte और R7 में upper byte. जब भी कोई carry आता है हम इसको increment करते जाते हैं. सबसे पहले हम the data represented by R0 उसको load किया, उसको accumulator के साथ add किया, result stored in accumulator. उसके बाद what we do, we check out कि कोई carry तो generate नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ so we'll skip incrementing R7. अगर carry generate हुआ we'll increment R7. And then we move on to R0, mean go to the next byte. We check out कि जी तमाम bytes add हो गए या नहीं, and then we repeat the process. सब सारे complete हो जाएं तो R2 की value 0 हो जाएगी and we will be done with this program. Is this clear, right? Hello? Yes, sir. This Yes, is sir. exactly similar program that we did in microprocessor. सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम रजिस्टर R0 को यूज कर रहे हैं, R2 को यूज कर रहे हैं, रजिस्टर B की जगह पे R7 को यूज कर रहे हैं. Only the registers are different, the memory pointers are different, the counters are different, the rest of the program is same. अच्छा, let's move on to another one. When we add two 16-bit data operands, the propagation of a carry from the lower byte to higher byte is connected. तो अगर हम दो 16-bit data है उसको ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा. सो ये दूसरा प्रोग्राम है जहाँ पे लिखा हुआ है write a program to add two 16-bit numbers. Place the sum in R7 and R6. ठीक है, R6 should have the lower byte. So दो 16-bit numbers जैसे कि ये है, इनको आपस में ऐड करना है. ठीक है. अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैरी को क्लियर कर देते हैं. फिर उसके बाद हम फर्स्ट लोअर बाइट को एक्यूमुलेटर में हमने डाल दिया. ठीक है. फिर हमने नेक्स्ट लोअर बाइट को उसके साथ ऐड किया.
ठीक है, जब दोनों को 8 किया, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है लोअर बाइट उसको हमने R6 में स्टोर किया, जिस तरह ये बता रहे हैं शुड हैव द लोअर बाइट। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट बाइट जो है 3C उसको एक्यूमुलेटर में डाल दिया। एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं एड विथ कैरी, तो अगर प्रीवियस एडिशन से कोई कैरी आ चुका है तो दैट इज गोइंग टू बी एडेड हियर। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू विच इज 3C विच इज दिस वन, कैरी की वैल्यू विच इज 1 विच इज दिस वन, और साथ में 3B को ऐड किया, राइट, एंड द रिजल्ट्स, इसका जो भी रिजल्ट आता है उसको R7 में हम स्टोर कर लेते हैं। सो इस तरह हम दो 16 बिट डेटा को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन। write down a program to add to 16 bit numbers, place the sum in R7 in R6। R6 में लोअर बाइट हमने स्टोर करना है। सबसे पहले हम कैरी को क्लियर करते हैं, फिर फर्स्ट लोअर बाइट को हम एक्यूमुलेटर में डाल देते हैं और नेक्स्ट लोअर बाइट को उसके साथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका जो रिजल्ट आता है उसको हमने R6 में स्टोर कर दिया, ये जो 74R। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3C को हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया, और फिर अगर कोई कैरी आया है तो ऐड कैरी का इंस्ट्रक्शन यूज किया है, दैट मींस accumulator plus carry and the next byte is going to be added and the results are going to be here। जो भी रिजल्ट आता है उसको हमने R7 में स्टोर कर दिया। Is that clear enough, right? Yes sir। Good, good। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं। The binary representation of digits are usually from 0 to 9। BCD नंबर जिसको हम कहते हैं, आप लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसमें जितनी भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा BCD नंबर में होती है, लेकिन इंटरनल प्रोसेसर ये चीज़ ध्यान रखें, प्रोसेसर हमेशा एक बाइनरी LU यूनिट उसमें होता है। सो वो जितनी भी कैलकुलेशन करता है वो बाइनरी ही होती है, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है ना, चाहे आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर हो, चाहे आपके कैलकुलेटर का प्रोसेसर हो, चाहे आपके मोबाइल का प्रोसेसर हो, वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो है वो बाइनरी में होती है। लेकिन जो आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर रहे होते हैं वो BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिसकी रेंज 0 से 9 तक। ठीक है, तो अगर आपके पास अनपैक्ड BCD का मतलब ये है कि अगर आपके पास 95 है तो 9 और 5 दो डिफरेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, पैक्ड का मतलब है कि ये कंबाइंड ए सिंगल डिजिट है। इस पे थोड़ा सा प्रोग्राम आगे करते हैं तो आइडिया हो जाएगा आपको क्लियरली। Let's say adding two BCD number must give a BCD result। मीन आप 17 और 28 को ऐड कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो है उसी तरह चाहिए जिस तरह आपका कैलकुलेटर देता है। ठीक है, इट्स 17 and 28, it should give you 45 rather than it should give you kind of some binary number result which is this 3FH for instance। ठीक है ना, so what we do is that हमने पहला नंबर एक्यूमुलेटर में डाल दिया, when we do this एडिशन हमारे पास रिजल्ट 3F आता है। तो जब भी आपका रिजल्ट जो है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, या आपको फर्स्ट डिजिट से सेकंड डिजिट में ऑक्सिलरी कैरी आ जाता है, देन यू हैव टू ऐड 6 विद द रिजल्ट टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट। आप इन दोनों को ऐड करेंगे बाइनरी में तो आपके पास 3F रिजल्ट आएगा। सो F इज एन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, तो इसके साथ हमें +6 ऐड करना पड़ रहा है। ये चीज ध्यान में रखें, ये हम प्रोसेसर में करते थे। कंट्रोलर में ऑन दी अदर हैंड ये वाला काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है दैट इज कॉल्ड DAA, डेसिमली एडजस्ट एक्यूमुलेटर। तो जब भी आप बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो ये चीज ध्यान में रखें कि इसके बाद ये वाला एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो आपको एक्चुअल रिजल्ट देता है। ये 47 और 25 को अगर आप कैलकुलेटर पे ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट 72 आना चाहिए, लेकिन अगर आप बाइनरी में इसको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट 6CH आएगा। तो ये जो काम है ये करता है DAA, डेसिमली एडजस्ट एक्यूमुलेटर। रिमेंबर दिस इंस्ट्रक्शन इज नॉट इन द प्रोसेसर। प्रोसेसर में हम ये चेक करते थे, एक एक निबल को चेक करते थे कि अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं है, ऑक्सिलरी कैरी चेक करते थे और उसके मुताबिक जो है हम 6 ऐड करते थे रिजल्ट्स में। अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ना हो और ऑक्सिलरी कैरी भी ना हो तो फिर आपका रिजल्ट सही होता है, सेम मतलब एग्जैक्टली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ये सिर्फ उस केस में जब आपके रिजल्ट में कोई अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक कैरेक्टर आ जाता है जैसे ABCDE, या आपको कोई ऑक्सिलरी कैरी मीन फर्स्ट डिजिट से सेकंड डिजिट में कैरी आ जाए। ठीक है,
तो जब भी आपने BCD एडिशन करनी हो, बाइनरी कोडेड डेसिमल एडिशन करनी हो, तो उसके आखिर में आपने DAA की कमांड यूज कर दी। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये चीज ध्यान में रखें, आप जब ये लैब वगैरह करेंगे उसमें आप कैलकुलेटर बनाएंगे और उस कैलकुलेटर में आपको ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करें तो उसके बाद DAA का इंस्ट्रक्शन यूज करना है, डेसिमली एडजस्ट द एक्यूमुलेटर। ठीक है सर। अब ये एक दूसरा केस है, ठीक है, आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट 41 आ गया, 41 में कोई अल्फाबेट तो नहीं है, लेकिन यू गॉट एन ऑक्सिलरी कैरी, तो दोबारा उसके साथ +6 ऐड करना पड़ता है टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट विच इज 47। 29 और 18 को अगर आप ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट 47 आना चाहिए ना, राइट? हेलो, यस सर। गुड, यस सर। अच्छा, अब जाते हैं थोड़ा सा आगे, उसी पुराने प्रोग्राम को जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 5 डिफरेंट नंबर्स को ऐड किया था। यहाँ पे वो नंबर्स थोड़े से डिफरेंट है, दे से दे आर 5 BCD डेटा आइटम्स, ठीक है। सो दीज आर नॉट हेक्साडेसिमल नंबर, दे आर एक्चुअली BCD नंबर, मीन 7, 1, 11, 65, दे आर BCD नंबर्स। तो वही प्रोग्राम एग्जैक्टली रिपीट होगा, सिर्फ ये है कि एडिशन के बाद ये एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन आ गया, डेसिमली एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। आप अगर वो पुराने इंस्ट्रक्शन उस पर चले जाएं प्रोग्राम में, वेट, दिस वाज द प्रोग्राम, ठीक है। अब ये प्रोग्राम और ये जो अभी हम आगे कर रहे हैं वहां पे सिर्फ यहाँ पे DAA लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये DAA एक्स्ट्रा आ गया, बाकी पूरा प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम है। ये 5 नंबर्स को ऐड कर रहा है, R0 को हमने एज ए मेमोरी पॉइंटर यूज किया, R2 इज टू काउंट द नंबर ऑफ बाइट्स, A को क्लियर किया, R7 को क्लियर किया, and then we start adding the numbers, and every time we add we decimally adjust the accumulator, and if there is no any carry we increment R7, otherwise we increment the memory pointer and we keep on repeating unless all the bytes are added. So ये BCD, जी प्लीज सर, ये क्लियर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं सर? क्लियर इसलिए हम एक्यूमुलेटर में 0 वैल्यू डालते थे पहले ना, तो वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो अगर आप क्लियर A लिखेंगे तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, वही काम करता है, तो इस मेमोरी एफिशिएंट। सर जी, R0 में 40 एड्रेस डाले ना, हाँ, तो नीचे 5 डेटा, तो ये एड्रेस के आगे भी हैश का निशान। देखिए यहाँ पे ये एज ए डेटा का जा रहा है R0 में, ठीक है ना, ये तो R0 की वैल्यू हो जाएगी ना, ठीक है। और फिर ये एज ए एड्रेस काम करता है। आप लिफाफे के बाहर लिखते हैं 20, तो 20 जो है वो हाउस का एड्रेस शो करता है ना। अगर वही 20 आप कागज पे लिख के लिफाफे के अंदर डालेंगे तो वो कोई इंफॉर्मेशन होगी, तो नंबर तो वही चीज है। सो R0 में अगर आपने 40 डाल दिया, पहले तो आप R0 में कोई वैल्यू डालेंगे ना, फिर वो वैल्यू एज ए एड्रेस के तौर पे काम करेगी। मेक सेंस? यस सर। गुड। तो ये मैं एक्चुअली बता रहा था कि BCD नंबर्स और नॉन BCD नंबर्स की एडिशन में यही फर्क है कि इसमें आपको एडिशन के बाद ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन लगाना होता है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ठीक है, टू कन्वर्ट योर रिजल्ट इनटू बाइनरी कोडेड डेसिमल। सर जी सर, ये इस प्रोग्राम में कैरी को ऐड नहीं कर रहे। इस प्रोग्राम में हमें कैरी को ऐड करने के लिए R7 हमने लगाया हुआ है ना। जब भी उसको हमने नेक्स्ट बाइट के साथ नहीं ऐड करना, हमने नेक्स्ट बाइट के साथ उसको नहीं ऐड करना, ठीक है ना। जब ये दोनों ऐड होंगे इससे कैरी आएगा, कैरी के लिए हमें दूसरा रजिस्टर चाहिए होता है, इसलिए कि हम 2 से ज्यादा बाइट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे हम मतलब 16 बिट कर रहे थे, लेकिन वो कैरी पहले 2 बाइट से अगले में चला जाता है और बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे तो ये पहले 2 ऐड करोगे, इससे कैरी आ गया, फिर नेक्स्ट 2 ऐड करोगे, फिर कैरी आ जाएगा, तो वो कैरी आगे तो नहीं ऐड होता। यहाँ पे कैरी तो इसमें सिर्फ ऐड होता है। ओके सर, ओके, ठीक है। आप जब 5 नंबर इस तरह ऐड करते हैं, उसमें जो भी कैरी आता है साइड पे आप उसको ऐड करना होता है ना, आप उसको नेक्स्ट नंबर के साथ तो नहीं ऐड कर सकते। ये तो नेक्स्ट नंबर नहीं है, ये तो उन्हीं लोकेशंस पे है, या नहीं? यस सर। अब देखिए इन 5 नंबर्स को एडिशन, सिंपल एडिशन में ये 5 नंबर को जब आप ऐड कर रहे होते हैं, तो अगर ये 9 + 5 से 14 आ गया, ठीक है, तो वो 1 तो इधर नहीं ऐड होता, वो तो अगले वाले में जाएगा ना।
यस सर। बात समझ आ रही है? जी सर, यस सर। जी जी। एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? सारों को ऐड करके DAA कर सकते हैं? नहीं, हर एक एडिशन के बाद आपने DAA करना है, इसलिए कि हर एक एडिशन के बाद आपके पास अल्फाबेटिक करेक्टर आएगा या आपके पास ऑक्सिलरी कैरी आएगा, तो उसको उसी वक्त एडजस्ट करना होता है। Is it clear? So each addition is actually an independent entity. Yes sir. ठीक है? Shall we move on? Yes sir. Good. ये तो लास्ट वीक का लेक्चर है, अभी हम वही खत्म करने के चक्कर में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, इस केस में आपके पास यू हैव सब्ट्रैक्शन विद बारो, ठीक है ना? सो इट्स सब BBA कामा सोर्स। तो ये सिर्फ सोर्स को नहीं वो सेपरेट करता है, इसके साथ साथ कैरी को भी करता है। तो जब भी आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करें, मेक श्योर अगर आप कैरी को कंसिडर नहीं कर रहे तो इस इंस्ट्रक्शन से पहले आपने कैरी को क्लियर करवाना होगा, ठीक है? तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। जैसे कि यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन व्हेन द कैरी इज 1 फॉर इंस्टेंस इट कैन इफेक्ट। तो जब भी आपने सब्ट्रैक्शन ये वाला कमांड यूज करना है, 8051 में मेरे ख्याल में सब्ट्रैक्शन विदाउट बारो है ही नहीं, ये एक ही इंस्ट्रक्शन है दोनों कामों के लिए। तो जब भी आपने ये यूज करना हो तो पहले आपने कैरी को क्लियर करना होगा, ठीक है? फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमने 62 के एमुलेटर में डाल दिया, तो वी हैव टू क्लियर द कैरी फर्स्ट, फिर देन वी यूज दिस कमांड टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर, ठीक है? देयर इज अनदर वन, देयर इज अनदर इंस्ट्रक्शन। सो इन तमाम इंस्ट्रक्शन में चीज जहन में रखे, जब भी आपने कैरी को कंसिडर नहीं करना तो कैरी को पहले क्लियर कर लिया करें। अच्छा, 8051 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की भी इंस्ट्रक्शन है। 8085 में हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरा फंक्शन और प्रोग्राम लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपने 2 बाइट्स को मल्टीप्लाई करना हो तो एक में को एक्यूमुलेटर में डाल दे, दूसरे को रजिस्टर B में डाल दे, ठीक है? जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो लोअर बाइट आपका एक्यूमुलेटर में आएगा और हायर बाइट आपका रजिस्टर B में आएगा, ठीक है? दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई AB। सर कैरी आ जाए तो वो क्या आ जाए? इसमें तो कैरी नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 बिट नंबर को, उसका रिजल्ट 16 बिट से कभी भी बड़ा नहीं आता, कभी भी बढ़ा नहीं आता। ठीक है सर, ठीक है? आपका रिजल्ट हमेशा 16 बिट से कम आएगा। So keep this thing in mind. So whatever you want to multiply, simple ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, multiply AB। तो एक को A में डाल दें, दूसरी वैल्यू आपने B में डाल देनी है, and you just use the multiply instruction, simple multiplication, ठीक है? And the results, higher byte is going to be stored in register B and lower byte is going to be stored in register A। इसी तरह हमारे पास 8051 में डिवीजन की भी इंस्ट्रक्शन है, divide AB, ठीक है? सो A रिप्रेजेंट द न्यूमरेटर एंड B रिप्रेजेंट द डिनोमिनेटर। तो अगर आपने 95 को 10 पे डिवाइड करना हो तो 95 को एक्यूमुलेटर में डाल दे, 10 को B में डाल दें व्हेन यू। अच्छा, यहाँ पे ये एक छोटी सी गलती है, दिस इज सपोज टू बी डिवाइड AB एक्चुअली, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है? ये आप लोगों के पास जो स्लाइड्स है उसमें ठीक नहीं होगी, एनीवे इट्स करेक्टेड हियर, ठीक है? सो व्हेन यू डू डिवाइड AB, व्हाट्स गोना हैपन इज एक्यूमुलेटर में आपके पास 9 आ जाएगा और उसका जो रिमाइंडर है वो रजिस्टर B में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 95 को 10 पे डिवाइड करेंगे, इससे 9.5 नहीं आएगा बिकॉज वी डोंट हैव फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। यहाँ पे आपके पास कोशेंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। आप लोग को समझ आती है ना द डिफरेंस बिटवीन कोशेंट एंड रिमाइंडर? यस सर। गुड गुड गुड। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि बाज़ औक़ात when your carry when the register B value is 0 then your overflow flag जो हमारे पास था that will be 1, so which will indicate there is an error, ठीक है? so you have to make sure कि register B की वैल्यू जो है वो कभी 0 ना हो। अच्छा, now we have another example. Write a program to get hex data in the range of 0 to FF from port 1 and convert it to the decimal. Save it in R7, R6 and R5. ये कह रहा है सर जी 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो रजिस्टर B की वैल्यू 0 आएगी, फिर एरर आएगा। क्या करेंगे? 5 को 5 पर डिवाइड करें
तो रिजल्ट क्या आएगा रजिस्टर ए में? बी में 0 आएगा ना। वो तो रिमाइंडर होगा ना, आप 0 पे डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं ना? सही सही, मतलब डिवीजन से पहले 0 स्टार्ट ना में हो। जी 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 जी, आप 0 पे सही डिवाइड ना करें ना। ठीक है है ना? सर। गुड, थैंक यू। अच्छा जी, ये छोटा सा प्रोग्राम है, राइट डाउन ए प्रोग्राम टू गेट हेक्स डेटा इन रेंज 0 to FF फ्रॉम पोर्ट 1। ये कह रहा है पोर्ट 1 से वैल्यू उठाएं और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, ठीक है? और डेसिमल जो आपके पास वो रिजल्ट हो उसको R7, R6 और R5 में स्टोर करें, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमने पोर्ट 1 से वैल्यू रीड करनी है, सो पोर्ट 1 को एज ए इनपुट पोर्ट के तौर पे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, FF को पोर्ट 1 में भिजवाएंगे। तो हमने FF को पहले A में डाल दिया और उसको P1 में भिजवा दिए। तो इससे क्या हो गया, पोर्ट 1 आपका एज ए इनपुट पोर्ट के तौर पे कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाइट हमने एक्यूमुलेटर में रीड कर दी पोर्ट से, ठीक है? अच्छा, फिर उसको रजिस्टर बी में हमने एक वैल्यू डाल दी, सिर्फ इसलिए कि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ना, हमारे पास लेट से फॉर इंस्टेंस वैल्यू आ गई 253, हमारे पास वैल्यू है। क्या वैल्यू है हमारे पास? 253 विच इज इक्वल टू FD। बात समझ आ रही है? हेलो? यस सर। अच्छा, यस सर, ये यस थोड़ा सर। सा मैं एक्सप्लेन करवा दूं कि देखिए, हम इनपुट से वैल्यू रीड कर रहे हैं और उसके स्टोरेज के लिए हम 3 रजिस्टर यूज कर रहे हैं। क्यों 3 रजिस्टर यूज कर रहे हैं? कि इनपुट वैल्यू हमारे पास 255 तक जा सकती है। कहां तक? 255। तो उसमें कितने 255 डिजिट है? उसमें डेसिमल डिजिट कितने हैं? 3 है ना, 3 है। ठीक है? तो हर एक डिजिट को आइसोलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, लेट से हमने वैल्यू रीड की और लेट से वो वैल्यू है FD विच इज 253, ठीक है? सबसे पहले हमने उसको 10 पे डिवाइड किया, ठीक है? 10 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका सबसे लोअर डिजिट एज ए क्वोशंट आ जाएगा 3। उसको हम स्टोर कर देते हैं रजिस्टर R7 में, ठीक है? फिर दोबारा 10 पे डिवाइड किया, 25 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा? 5, ठीक है? 5 को हमने रजिस्टर R6 में स्टोर कर दिया, ठीक है? और जो क्वोशंट हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 व्हिच इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन R5। इज इट क्लियर? शुड आई रिपीट दिस होल प्रोसेस अगेन? रिपीट करें सर जी। अच्छा, आपने पोर्ट 1 को एज एन इनपुट के तौर पे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर आपने पोर्ट 1 से वैल्यू रीड की। लेट से वो वैल्यू है FD जो कि 253 के बराबर है, ठीक है? अच्छा, फिर हमने क्या किया, सबसे पहले उसको 10 पे डिवाइड करने से क्या करेंगे, बी में वैल्यू 10 डाल दी, उसको डिवाइड किया, तो जो क्वोशंट आ गया 253 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 3 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है 3 रजिस्टर बी में है, उसको R7 में स्टोर कर दिया। फिर दोबारा रजिस्टर बी में हमने 10 डाल दिया, दोबारा डिवाइड किया, तो हमारे पास 25 क्वोशंट आया था, उसको 10 पे डिवाइड करने से 2 क्वोशंट आ जाएगा और 5 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है? क्वोशंट रजिस्टर ए में होगा, उसको R5 में डाल दिया, और रिमाइंडर रजिस्टर बी में होगा, उसको R6 में डाल दिया। तो इस तरह हमारे पास 2 जो है R5 में है, 5 हमारे पास R6 में है और 3 हमारे पास R7 में है। तो हमने जब इनपुट रीड किया उसके तीनों डिजिट्स को हमने इंडिपेंडेंट 3 रजिस्टर्स में सेव कर दिया। इज दैट क्लियर इनफ? सर मतलब हेक्सा को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, और उसके एक एक डिजिट को एक अलग-अलग रजिस्टर में हमने स्टोर कर दिया। देखिए, यस प्रोग्राम सर। को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब सर ये काम FDH को पहले आप मैनुअली करें ना, फिर उसको प्रोग्राम के जरिए कन्वर्ट करें। जी प्लीज। जी सर। सर FDH को वो क्या समझते हैं कि वो 253 है? वो 253 है। नहीं, वो क्या समझते हैं, पर माइक्रो प्रोसेसर खुद समझते हैं कि माइक्रो वो? प्रोसेसर, हम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी इनपुट डिजिट आएगा वो उसमें 3 नंबर्स होंगे, ठीक है ना? आप इसी ठीक है। प्रोग्राम में कोई भी दूसरा नंबर डाल दे, 50 डाल दे, ठीक है ना? सही 50 को सही। इस प्रोग्राम में डाल दे, ये 50 डिवाइड बाय 10 क्या होगा? 0 आएगा, एक रजिस्टर में 0 आ जाएगा। दोबारा 50 को 10 पे डिवाइड करें, 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना? और 0 आपका क्वोशंट आ जाएगा। तो 050 आपके पास स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम के जरिए आप कोई भी नंबर इसको एज इनपुट दे, आपके पास तीनों रजिस्टर में इंडिपेंडेंट 3 डिफरेंट डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है सर जी। गुड।
अच्छा, नेक्स्ट इज कंप्लीमेंट। हमारे पास सिंपल वंस कंप्लीमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है विच इज कंप्लीमेंट ए। तो अगर आपने टूज कंप्लीमेंट निकालना हो यू नीड टू एड 1 विद इट, ठीक है। सो टूज कंप्लीमेंट के लिए यू हैव 2 इंस्ट्रक्शंस, वंस कंप्लीमेंट के लिए यू हैव सिंपल कंप्लीमेंट ए इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यस सर। अच्छा, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में इसके अलावा हमारे पास एंड की वो है, सो डेस्टिनेशन और सोर्स, ठीक है। इसमें हमेशा एक्यूमुलेटर के साथ ही एंडिंग होती है एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। सिंपल एंडिंग है, 0 0 0 1 1 0 1 1 के बेस पे एंडिंग होती है, ठीक है। लेट्स से हमने 2 नंबर्स को जो है एंड करना हो तो एक को एक्यूमुलेटर में डाल दिया एंड देन वी यूज द इंस्ट्रक्शन एंड ए विद 0f। तो ये दोनों को एंड करके योर रिजल्ट विल बी हियर। इज इट क्लियर? यस सर। So AND instruction is simple, similar to the one that we had in microprocessor. इसी तरह OR logic instruction है, इसमें भी it OR bit by bit जो है इसी टेबल के तहत एक एक बिट को जो है आपस में OR करती है। So let's say we want to OR 2 different digits, एक को accumulator में डाल दिया और दूसरे के साथ OR कर दिया and the result is going to be stored in the accumulator which comes out to be 60 based on this। ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, बिट बाय बिट उनको आर किया एंड दिस इज योर रिजल्ट। सिमिलरली एक्सआर में भी इसी तरह है, जो एक्सआर का टेबल है यही इसमें यूज होता है। इसमें फर्स्ट नंबर हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया देन वी एक्सआर द टू एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। आप देख रहे हैं ना, जब 0 0 तो रिजल्ट 0 होता है, जब 2 बिट्स डिफरेंट हो तो रिजल्ट इज 1, जब 2 बिट्स सेम हो रिजल्ट इज 0। तो यू 0, यस सर, ठीक है। सो दिस इज एक्सआर। ये कंप्लीमेंट का है, सिंपल कंप्लीमेंट, जो भी नंबर हो आपने कंप्लीमेंट करना उसको रजिस्टर ए में डाल दें एंड देन वी से कंप्लीमेंट ए एंड इट विल बी कंप्लीमेंटेड। तो 55 से ए बन जाता है एंड इफ यू वांट टूज कंप्लीमेंट्स के नीचे 8 0 1 करना होगा आपको। So these are actually the logical instructions. Next is compare instruction. Compare is also a logical instruction. तो ये वाला इंस्ट्रक्शन आपने प्रोग्राम में अर्लियर देखा भी होगा, कंपेयर जंप नॉट इक्वल। तो ये एक इंस्ट्रक्शन क्या करता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है। इफ दे आर नॉट इक्वल देन टारगेट एड्रेस पे जो है ये जंप करता है, इफ दे आर इक्वल देन इट वोंट जंप, ठीक है। सो कंपेयर जंप नॉट इक्वल, इसके नेम से इट्स एविडेंट कि it check out if the 2 bytes are equal or not equal. If they are not equal, it's going to jump. If they are equal, it won't jump. Okay, this is an example. So here it will check the value of R5 with 80. अगर ये इसके बराबर हुआ, it won't jump. If not equal, it will jump. ठीक है, this is not equal. इसी तरह हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है, jump no carry। अगर carry की वैल्यू 0 हो it will jump, otherwise it won't, ठीक है। so these are the conditional jumps। अच्छा, इस पे एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम है, write down a program to read the temperature and test if for the value of 75 according to the test result place the temperature value in the register indicated by the following। अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी आप रीडिंग इनपुट रीडिंग लें, ठीक है, और चेक करें कि 75 से कम है, 75 के बराबर है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 75 के बराबर है तो वो वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दें, अगर 75 से गिवन वैल्यू टेम्परेचर कम है तो उसको R1 में स्टोर करें और अगर ज्यादा है तो उसको R2 में स्टोर कर दें, ठीक है। अच्छा, हमने टेम्परेचर की वैल्यू जो रीड करनी है, जाहिर बात है ये 75 है तो ये कंप्लीट बाइट की वैल्यू है, तो एक पर्टिकुलर पोर्ट के साथ टेम्परेचर सेंसर हम लगाएंगे, ठीक है। लेट्स से पोर्ट P1 के साथ हमने टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, ठीक है। तो चूंकि हम पोर्ट से वैल्यू रीड करेंगे तो पोर्ट को हमें एज एन इनपुट पोर्ट के तौर पे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसमें FF की वैल्यू डाल दी, तो इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। अब हम पोर्ट से वैल्यू रीड करते हैं, ठीक है, और फिर कंपेयर करते हैं, कंपेयर जंप नॉट इक्वल। अगर ये 75 के बराबर नहीं है और दैट मींस यू गो हियर, ठीक है। अगर बराबर है एस जंप एग्जिट, एग्जिट पे जाओ और वो वैल्यू जो है
रजिस्टर R2 में डाल दो। सॉरी, एग्जिट इज आई थिंक इन द नेक्स्ट वन, इट्स नॉट हियर। एग्जिट में हमें जो एक्टिविटी करनी है वो ये करनी है कि उसकी वैल्यू एक्यूमुलेटर में डालनी है, ठीक है। एनीवे, तो सबसे पहले हमने वैल्यू वो की, इसको कंपेयर किया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर ये नहीं है, अगर 75 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि एग्जिट पे जंप नहीं करेगा। व्हाट इट हैज टू डू इज देन चेक आउट जंप नो कैरी नेक्स्ट, ये कैरी को भी चेक करता है, ठीक है। जब कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन में आपको याद है मैंने बताया था कि अगर गिवन वैल्यू इज लेसर देन द टारगेट तो आपका कैरी जो है 1 हो जाता है, ठीक है। यस सर। और अगर टारगेट वैल्यू से गिवन वैल्यू ज्यादा हो तो आपका कैरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो ये जंप नॉट कैरी नेक्स्ट, ठीक है। इफ द कैरी 0 देन दैट मींस द गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन 75, ठीक है। हमने पहले इक्वल को चेक किया, फिर हमने ग्रेटर को चेक किया। अगर ग्रेटर भी नहीं है तो वैल्यू हमने R1 में डालनी है, ठीक है। दैट मींस इट इज लेस देन, अदरवाइज एस जंप एग्जिट। अच्छा, मजे की बात यह कि जब हमने वैल्यू रीड की थी तो वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में आ गई थी, सो वी डोंट हैव टू डू दिस प्रोसेस। हमने सिर्फ एग्जिट पे जाना है और प्रोग्राम खत्म कर देना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर इफ गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन 75 देन वी हैव टू ट्रांसफर इट टू R2 अकॉर्डिंग टू दिस। सो इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपका इधर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें इसकी स्टेटमेंट जो है ये प्रोग्राम से बजाते खुद बड़ी है। नॉर्मली आप लोग जब प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखते हैं उसकी वजह से अक्सर चॉइस में छोड़ देते हैं कि ये काफ़ी कम्प्लेक्स होगा। ये एक छोटी सी हिंट मैं आपको बता दूं, इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जितनी बड़ी होती है उसका आंसर उतना छोटा होता है, ठीक है। जब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जितनी छोटी होती है उसका आंसर उतना बड़ा होता है। तो ये जहन जिंदगी में ये चीज़ जहन नशीन कर लें कि जो जितनी स्टेटमेंट, जितना प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ज़्यादा लिखी हुई होती है इसका मतलब है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। असल में प्रॉब्लम की स्टेटमेंट तब बड़ी होती है जब उसमें आंसर एक्सप्लेन हुआ हो। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। सर इसको हम इस तरह कर सकते हैं, टारगेट माइनस इनपुट, और फिर हम कैरी फ्लैग को चेक करें और 0 फ्लैग इस पे हम मालूम करें, 0 फ्लैग। इसमें 0 फ्लैग नहीं है ना, ये बड़ा मसला है। अच्छा ठीक, हाँ ये याद आया। ठीक है, क्लियर सर। ओके गुड, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट रोटेट के इंस्ट्रक्शन है। रोटेट के इंस्ट्रक्शन आपको याद है ना, सिंपल 8 बिट रोटेशन। ये दिस वन एक्चुअली ये कैरी को स्किप करता है और सिंपली जो है रोटेट करता है टुवर्ड्स राइट, तमाम बिट्स को टुवर्ड्स राइट करता है। तो ये जैसे 36 को एच को हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया विच इज इक्वल टू दिस, जब रोटेट करेंगे दे आर गोइंग टू बी रोटेटेड लाइक दिस। दोबारा रोटेट करेंगे तीसरी मरतबा का, 4 मरतबा रोटेट करने के बाद 36 से 63 बन जाता है। यू सी दैट? गुड गुड, यस। ओके, नेक्स्ट इज रोटेट लेफ्ट। ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, इट शिफ्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। एक चीज ध्यान में रखें, 4 मरतबा रोटेट लेफ्ट करें या रोटेट राइट करें, ये नंबर को 72 से 27 बना देता है। ठीक है, अगर डिजिट 3 हो तो 3 हो तो फिर तो डिफरेंट नंबर बनेगा, लेकिन 4 मरतबा करने से आप एक्चुअली नीचे वाले डिजिट को ऊपर जगह पे ले जाते हैं, वेदर आप लेफ्ट करें या राइट करें। नहीं सर, ऐसे नहीं, मतलब डिजिट अब ये 72 है, वो 172 हो तो उसको 4 मरतबा या कितने मरतबा करेंगे कि वो उसके उल्टा हो जाए? 172 एक रजिस्टर में नहीं आता ना। ठीक है सर। ठीक है, आपका मैक्सिमम नंबर FF तक जाएगा। 172H इज एक्चुअली 3 उसमें 3 निबल आ जाते हैं, इट्स मोर देन 8 बिट। ठीक है, अच्छा ये रोटेट थ्रू कैरी, तो इसमें कैरी भी शामिल है। ये कैरी को भी एज ए बिट लेता है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इसमें 9 हो जाते हैं। तो इसमें जो कैरी की वैल्यू है वो भी इसके साथ साथ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, RRC, इसी तरह RLC, इसमें भी कैरी शामिल है। इट एग्जैक्टली फॉलो दिस पैटर्न। तो जब आप वैल्यूज डालेंगे तो ये कैरी को इंक्लूड करके शिफ्टिंग करता है। ठीक है, अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट फाइंड द नंबर ऑफ वंस इन ए गिवन बाइट। ठीक है ना, अगर आपने एक पर्टिकुलर नंबर में
चेक करने के इसमें वंस कितने हैं, तो इसके लिए छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। R1 को हमने 0 कर दिया, R7 को हमने एज ए काउंटर यूज किया, इसलिए कि एक बाइट में 8 नंबर होते हैं और ये नंबर है जिसको हम चेक कर रहे हैं 9 7 के, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, तो ये वैल्यू इसका 1 फर्स्ट बिट जो है वो कैरी में आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि ये 1 तो नहीं है, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो हम आगे चले जाते हैं और काउंट को डिक्रीमेंट करते हैं। अगर 1 है तो हम R1 को 1 कर लेते हैं। जब भी 1 कैरी आएगा ये R1 इंक्रीमेंट होता जाएगा, तो आखिर में जब 8 के 8 बिट्स चेक हो जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने वंस थे। इज दिस क्लियर? ये प्रोग्राम आपने नोट किया होगा, पुराने काफी पेपर्स में आता है बार बार के राइट डाउन द प्रोग्राम टू चेक द नंबर ऑफ वंस और नंबर। अच्छा, इसकी जगह पे अगर इफ यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस फिर क्या होगा जी? वो इंक्रीमेंट जहाँ पर नेक्स्ट जंप एप कैरी, जंप एप कैरी सर, ये सी यहाँ पे जंप नो कैरी की जगह पे क्या होगा? यहाँ पर सर नेक्स्ट होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट में जाएगा, यहाँ पे जंप कैरी होगा, फिर ये कैरी पे स्किप करेगा, ठीक है ना। 1 को स्किप करेगा, 0 को काउंट करेगा। सर इस तरह भी तो कर सकते हैं कि नो कैरी में नेक्स्ट पर ना जाए तो इंक्रीमेंट करे। तो ये प्रोग्राम आप पूरा लिखेंगे किस तरह? फिर ये तो अभी तो ये 0 को स्किप कर रहा है, 1 को काउंट कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम जंप कैरी करते हैं तो वो फिर क्या करेगा, 1 को स्किप करेगा, 0 को काउंट करेगा। लेकिन अगर आप इसको ही हटा दे तो फिर ये तो सब कुछ काउंट करेगा। मेक सेंस? यस सर। सर अगर 8 बिट का नंबर है और 5 1 आ गए तो इसका मतलब 3 0 है। हाँ, इस तरह सर ये प्रोग्राम भी चला सकते हैं। अगर वो हमें सिंपल वंस दे देगा, हम जीरोस वहां से खुद निकाल लेंगे। ये कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है आप चला लें, ये 1 काउंट कर लेगा और फिर जो रिजल्ट आपके पास आ जाए उसको 8 से माइनस कर लें। यस सर, वही कह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। सो यू कैन राइट द सेम प्रोग्राम इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, दिस इज अनदर प्रोग्राम। राइट डाउन ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर वैल्यू 41H सीरियली 1 बिट एट ए टाइम वाया पिन 2.1। तो ये एक पूरे बाइट को एक एक पिन के जरिए एक एक बिट को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो सकता है। अगर आपने एक एक बिट को सीरियली ट्रांसफर करना हो, दिस इज नॉट सीरियल कम्युनिकेशन। अच्छा, ये चीज जहन में रखें, ये सिर्फ एक मैनुअल प्रोसेस है जिसके जरिए आप पैरेलल बाइट को जो है सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक एक बिट जो है आप पिन पे भिजवा सकते हैं। बात समझ आ रही है? आपके पास लेट से एक नंबर है 41H और इसके एक एक बिट को आपने पिन 2.1 पे भिजवाना हो। बात समझ आ रही है? यस सर। गुड। सो इसका क्या करेंगे, हमने पहले इसको एक्यूमुलेटर में डाल दिया, ठीक है। देन वी मेड सेट बिट 2.1। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती इनसे यहाँ पे हुई है। दिस इज सपोज टू बी, दिस इज नॉट एक्चुअली नीडेड, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज डाली है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। आप लोगों ने अभी कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं पढ़ा ना? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी ये चीज आप पढ़ेंगे। ये शुरू में 2 1 1 और आखिर में 2 1 1 ऐसे ही एहतियातन भिजवाते हैं ताकि पता चले कि इसके दरमियान डेटा है, ठीक है ना। ये शुरू में 2 1 1 भिजवा दिए और आखिर में 2 1 1, ठीक है। दिस इज एन इंडिकेशन के इन बिटवीन देयर इज डेटा। मीन दिस इज नॉट एक्चुअली डेटा, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है कि जब भी आपका डेटा स्टार्ट हो ना, उससे पहले 2 मरतबा 1 1 भिजवा दिए इन्होंने। तो ये आप कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर ये आप हटा भी देते हैं, ये दोनों इंस्ट्रक्शन और ये जो आखिर वाले 2 इंस्ट्रक्शन, आपका प्रोग्राम फिर भी सही है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सर ये हमें नजर नहीं आएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में सर, इसका कोई ये जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको तो खैर नजर आएगा। अगर आप एलईडी लगाते हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद एक 2 सेकंड का डिले डाल लेते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आप डिस्प्ले पे देख सकेंगे कि आपने जो डेटा भिजवाया वो क्या क्या है। लेकिन अभी तो आप लोगों ने लेट स्टार्ट नहीं की, मेरे ख्याल में स्टार्ट कर दिया। ईद के बाद सर ने लेक्चर्स भेजे हैं, ईद के बाद करेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक, गुड गुड।
तो ये अगर मैं सिर्फ एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को रिमूव भी कर लेना, इन दोनों को, योर प्रोग्राम इज स्टिल फाइन। आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, आपने कम्युलेटर में वैल्यू डाल दी, R5 में 8 डाल दिया, R5 ये चेक करता है कि तमाम 8 के 8 बिट्स ट्रांसफर हो गए, ठीक है। फिर हम RRCA के जरिए फर्स्ट बिट को हम कैरी में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, और कैरी से फिर पिन में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो पिन पे चला जाता है। एंड देन वी चेक आउट के जी डिक्रीमेंट जंप नॉट 0 R5 को 8 से 7 कर दिया, फिर रिपीट किया, यही प्रोसेस हम 8 मरतबा रिपीट करते हैं और आपका प्रोग्राम इधर खत्म हो जाता है। एक्चुअली यू डोंट नीड दीज टू इंस्ट्रक्शन है, यू डोंट नीड दीज टू इंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? अगर कंफ्यूजन जनरेट कर रही है, आई कैन रिमूव देम। लेट मी जस्ट रिमूव देम जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू। Now it will be a bit difficult to remove them, but let's see. Okay, it might look odd. Okay, here we go. इसी तरह let's remove these and these, and naturally we have to remove these. ठीक है जी, इज इट क्लियर नाउ? आपका एक्चुअल प्रोग्राम काफी छोटा है, असल में आपको याद करने में मुश्किल होगी फिर। सही है? हेलो? यस सर। गुड गुड। सो ये सिंपल प्रोग्राम है जो कि 41 को सीरियली भिजवाता है। अगर आपने 63 भिजवाना तो क्या करेंगे? ऊपर सर एक्यूमुलेटर में 63 डाल देंगे बस, सिंपल। ठीक है। और अगर आपने पिन 1.2 पे भिजवाना हो 2.1 की जगह पे, तो वहां पे वही लिखेंगे, 2.1 की जगह 1.2 लिखेंगे। गुड, थैंक यू। अच्छा, सो दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस, सेवरल इंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से आपका कैरी यूजुअली इफेक्ट होता है। उसमें सेट बिट कैरी है, क्लियर कैरी है, कंप्लीमेंट कैरी है, कैरी की वैल्यू अगर आप डालते हैं, ठीक है ना, एंड कॉपी बिट स्टेटस ऑफ ये बी जो है रजिस्टर बी नहीं शो कर रहा। अच्छा, ये बिट शो कर रहा है। आपको याद है वो बिट एड्रेसेबल लोकेशंस जो थी? यस। ठीक है। सो दिस बी इज नॉट दैट रजिस्टर, इट इज एक्चुअली दैट लोकेशन। जंप नॉट कैरी, उसमें कैरी यूज होता है। एंडिंग कर सकते हैं आप पर्टिकुलर पिन या बिट को कैरी के साथ। आर कर सकते हैं, एक्स आर कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज अनदर प्रोग्राम। Assume that bit pin 2.2 is used to control an outdoor light and bit 2.1 a light inside a building. ठीक है। Show how to turn on the outside light and turn off the inside one. ये सिंपल से प्रोग्राम्स हैं जिनको आप लोग अपने घरों में अपने होम अप्लायंसेस कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट बिट सी, ठीक है, एंड देन मीन कैरी की वैल्यू हमने 1 कर दी, फिर इसको आर किया विद पिन 2.1, तो उसे क्या हो जाएगा, पिन 2.1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। देन मूव द कैरी की वैल्यू पिन 2.2 पे भिजवा दी, एंड देन वी क्लियर सी दिस इज टू टर्न ऑफ। पिन 2.5 को के साथ इन करने से इट विल टर्न ऑफ। तो 1 इज फॉर टर्निंग ऑन एंड द अदर 1 इज फॉर टर्निंग ऑफ। इट्स अ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, जिससे आप आउटडोर और इंडोर लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, विच आर कनेक्टेड टू पिन 2.2 एंड पिन 2.5। एक चीज़ याद रखें, आप लोग डायरेक्टली किसी भी होम अप्लायंस को तो कंट्रोलर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन आप हर एक अप्लायंसेस के साथ, चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे वो बेल हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे फैन हो, उसके साथ रिले लगा सकते हैं, और उस रिले के इनपुट पिन के साथ आप माइक्रो कंट्रोलर का आउटपुट पिन लगा सकते हैं। सो यू कैन इजीली टर्न इट ऑन एंड ऑफ। रिले एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विच होता है, जिस तरह आपका फिजिकल स्विच होता है घर पे जब वो प्रेस करते हैं आप ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। रिले एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, तो उसको अगर आप कंट्रोलर से सिग्नल देते हैं तो वो पर्टिकुलर लाइन ऑन ऑफ हो जाती है, ठीक है। उससे आप घर में मुख्तलिफ चीज़ों को टाइमिंग के मुताबिक ऑन ऑफ करवा सकते हैं कि जी ये कंप्यूटर से या माइक्रो कंट्रोलर से उसमें टाइमिंग दे दें कि जी ये वाली लाइट इस टाइम से इस टाइम तक ऑन हो, ये वाली इस टाइम से इस टाइम तक ऑफ हो। सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स।
अच्छा, there is another small program. Write a program to find the number of 1 in a given byte. There is another. It's exactly the same program that we discussed earlier on. ठीक है, ये सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स को वो करने के लिए यूज होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, एक्सक्यूज सर ये अक्सर तो हम जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें तो लूप को बार बार रन करना होता है, तो उसके लिए हम इनफाइनाइट लूप डिजाइन करेंगे या इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोई अपना सिस्टम है कि वो खुद ब खुद नहीं, बार-बार आपने आखिर में इस जंप लिखना होगा और जहां से आपने प्रोग्राम को रिपीट करना है बार बार उसको लेबल देना होगा। तो सर इस तरह करने से अगर माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ ऑन ऑफ हो जाता है गलत टाइम पे या किसी गलत नहीं तरीके होगा। से, असल नहीं में कंट्रोलर के साथ जो है यूजुअली इसमें टाइमर्स होते हैं जो कि टाइमिंग वगैरह जो है सेव करते हैं, वो बाद औक़ात उसको नेट से जो है लेके अपडेट करते हैं। बास कंट्रोलर में आरटीसी होता है, रियल टाइम क्लॉक, तो वो उसको हम नेट से अपडेट करके उसी टाइम के मुताबिक ये ऑन ऑफ होता है। अगर सर कोई पावर चली जाती है तो इसके अंदर कोई रेजिडुअल डेटा वगैरह तो नहीं रहता जैसे कंप्यूटर्स के अंदर रह जाता है अक्सर? जो मॉडर्न कंट्रोलर्स हैं उसमें एक तो फ्लैश मेमोरी होती है, दूसरा उसमें आरटीसी होता है, तीसरा वो जब भी ऑन होता है वो नेट से जो है टाइम उठाता है। ये सर आप आर्डुइनो की बात कर रहे हैं? आर्डुइनो नहीं, मैं आर्डिनो की बात नहीं कर रहा, मैं मॉडर्न कंट्रोलर्स की बात कर रहा हूँ। ओके सर, सही है। ठीक है, कंट्रोलर में चीजें होती है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अनदर कमांड इज स्वैप। सो आप 4 मरतबा रोटेट करते थे, 2 नंबर आपस में वो शिफ्ट हो जाते थे, 72 से 27 बन जाता था, 63 से 36 बन जाता था। इसमें एक कमांड से वही काम हो जाता है। द मोमेंट यू से स्वैप, what happens, the lower nibble go to the upper one and the upper one will go to the lower one। ठीक है, ये सिंपल कमांड है। अगर आपने 72 से 27 बनाना है, अगर आपने 63 से 36 बनाना है, दिस इज द कमांड यूज फॉर दैट। इसके सिंपल एग्जांपल ये है कि लेट्स से आपने एक्यूमुलेटर में 72 डाल दिया, एंड द मोमेंट यू से स्वैप इट विल कन्वर्ट इट टू 27। इसका अल्टरनेट ये है कि आप इसको 4 मरतबा रोटेट कर लें। इज इट क्लियर? यस सर। गुड गुड, दिस इज सिंपल। अच्छा, एक और चीज, आप जब एलसीडी लगाएंगे अपने कंट्रोलर वगैरह के साथ, तो उस पे जो करेक्टर डिस्प्ले होते हैं दे हैव टू बी इन द आस्की फॉर्मेट। ये आप लोगों ने C++ में पढ़ा था ना, जब मॉनिटर वगैरह को डेटा भिजवाना होता है तो दे हैव टू बी इन द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की। तो आपके हेक्साडेसिमल और आस्की में अगर आप टेबल में देखें तो इसमें 3 0 का फर्क है। जो इसका 0 होता है वो उसके 3 0 के बराबर होता है। तो आपने जब भी 0 से 9 कोई भी नंबर को आस्की में कन्वर्ट करना हो तो उसके साथ आपने 30H को या तो आर करना होगा या एंड करना होगा, या सॉरी ऐड करना होगा। ठीक है, तो 30H को जब आप इसके साथ आर करेंगे या ऐड करेंगे, इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट एंड यू विल गेट द आस्की करेक्टर। तो अगर आपने 0 डिस्प्ले करना हो तो आप 0 नहीं भिजवाएंगे एलसीडी को, आप 30 भिजवाएंगे तो वो 0 शो करेगा। इसी तरह अगर आपने 5 डिस्प्ले करना हो तो आप 35H भिजवाएंगे। इज दैट क्लियर? ये जब हम एलसीडी पढ़ेंगे उसमें क्लियर आ जाएगा। ठीक है ना? गुड। So this is how it's done usually. Let's say आपका 4 करेक्टर है, 7 है। अच्छा, दोबारा अगर आपने ASCII से ओरिजिनल नंबर जनरेट करना हो तो then you have to use AND 0F। तो ये इससे वो जो अपर 3 है वो हटा देता है, ये वाला नंबर ये उससे हटा देता है। ठीक है ना? सॉरी, ये दिस वन 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय 37, तो जब आप एंड करेंगे तो इससे 3 उड़ जाएगा। तो ये 4 अगर करेक्टर आप लिखते हैं तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 34H। So if you want to get the actual number, what you have to do is you have to use end it with 0F, so that will give you 4. इसी तरह 7 character है, this is actually stored as 37H, so you have to end it with 0F to get 07. ठीक है, और अगर आपने इसको कंबाइन करके इससे ओरिजिनल नंबर जनरेट करना 47, तो आप क्या करेंगे? You will swap A, so that will convert your 04 to 40, and then you can R the 2 to get 47H. So this is how you can convert in ASCII to a packed BCD. So ASCII में ये 4 करेक्टर था, 7 करेक्टर था, और packed BCD में it is 47H. Is it clear? सर जी जी सर, पैक्ड बीसीडी और अनपैक्ड बीसीडी में क्या फर्क है? अनपैक्ड में ये होता है कि आपके 47 है तो 4 एक अलग जगह पे होगा, 7 अलग जगह पे होगा। पैक में 47 एज ए सिंगल डिजिट जो है एक जगह पे स्टोर होंगे।
मेमोरी की स्टोरिंग में फर्क। जी जी जी। थैंक यू सर। अच्छा, दिस इज अनदर स्मॉल प्रोग्राम जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू आस्की नंबर्स। तो इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। दिस इज अनदर स्मॉलर प्रोग्राम विच डज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, सो दिस वाज लास्ट वीक लेक्चर। लेट्स मूव ऑन टू दी दिस वीक लेक्चर विच इज प्रोग्रामिंग इन सी। तो आप लोगों के पास वैसे भी छुट्टियां आ रही हैं। छुट्टियां कब तक है वैसे? तो सर छुट्टी हमारे कोई तो नहीं है। कमिंग क्लासेस नहीं है, पर छुट्टियां नहीं है। मतलब मंडे को क्लास है आपकी? मंडे को नहीं है सर जी। मंडे को कब है यार? ट्यूसडे को। ट्यूसडे को ट्यूसडे है। को। ठीक है ठीक है ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विथ प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। ठीक है ना? अच्छा, ये लेक्चर मैंने वैसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 3 ग्रुप्स में तो कर लिया है। द रिमेनिंग आई विल डू इट लेटर ऑन। अच्छा जी, सो ये 8051 और जितने भी मॉडर्न कंट्रोलर है, इसका एडवांटेज ये है कि यू कैन राइट डाउन कोड फॉर देम इन सी लैंग्वेज एंड द कंपाइलर्स देन कन्वर्ट those code into the equivalent assembly and machine language. So this is the advantage to these modern microcontroller. इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको assembly language सीखनी पड़े। एडवांटेज assembly का ये है कि आपका कंट्रोल आ जाता है, आपको पता होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे किस रजिस्टर में काम हो रहा है, आपका कोड एफिशिएंट होता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि आपका कोड जो है वो पोर्टेबल नहीं होता। पोर्टेबल मतलब ये कि अगर आपने 8051 का कोड लिख लिया तो वो 8052 पे या किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोलर पे काम नहीं करेगा। सी लैंग्वेज ऑन दी अदर हैंड इज पोर्टेबल। आपने सी लैंग्वेज में एक कोड लिख दिया है कंट्रोलर के लिए, तो अगर आपने पिक का कंट्रोलर उठाया या मित्सुबिशी का उठाया, कोई भी कंट्रोलर आप उठाएंगे ना, तो उसमें वो कोड काम करेगा। सो इसलिए सी लैंग्वेज इज प्रिटी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट फ्यूचर में आप जहां पे भी जॉब करेंगे कंट्रोलर में वो करेंगे तो आप सी लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। गुड। यस। अच्छा, सी किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले आपको पता है डेटा टाइप्स यू नीड टू नो। तो इसमें अनसाइंड कैरेक्टर है, साइंड कैरेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर है, साइंड इंटीजर है, एस बिट, इसके जरिए आप एक सिंगल बिट को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। बिट है और एसएफआर है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ठीक है, दीज आर द डेटा टाइप्स। इसमें डबल नहीं है, फ्लोट नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ ये डेटा टाइप्स है। आप लोगों ने जो सी लैंग्वेज पढ़ी थी वो आप एक्चुअली कंप्यूटर पे रन कर रहे थे या सी प्लस प्लस कंप्यूटर पे रन कर रहे थे। एंड कंप्यूटर्स आर दीज डेज 64 बिट प्रोसेसर। सो उसमें डबल भी है, उसमें लॉन्ग भी है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिंपल अनसाइंड कैरेक्टर मिलेगा, साइंड कैरेक्टर मिलेगा, अनसाइंड इंटीजर मिलेगा, साइंड इंटीजर और सिंगल बिट, एंड देन यू हैव बिट और एसएफआर। दीज आर द डेटा टाइप्स। ठीक है, 8051 8 बिट कंट्रोलर है और इसकी जो अनसाइंड कैरेक्टर है उसकी रेंज आपके पास 0 से 255 तक जाएगी। ठीक है, अच्छा लेट्स से एक छोटा सा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में आपको शुरू में ये लिखना होता है इंक्लूड द हेडर फाइल विच इज reg51h। इसके बगैर कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता। दूसरा, जितने भी सी लैंग्वेजेस हैं, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, विजुअल सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल सी शार्प, ये सारे प्रोग्राम जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये पहले इंस्ट्रक्शन से शुरू नहीं होते, ये स्टार्ट करते हैं मेन से। विदाउट मेन इसमें कोई फंक्शन जो है काम नहीं करता। आप मेन फंक्शन पहले स्टार्ट होता है और वहां से बाकी फंक्शन कॉल करते हैं। ये तो आप लोगों को पता है ना, सी प्लस प्लस में भी यही यस सर। यस सर। असेंबली में सिर्फ ये है कि असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन आप पहले लिखेंगे पहले वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यहाँ पे आप कुछ भी कर ले, सबसे पहले आपका मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये क्या करता है, ये एक फॉर लूप है जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये पोर्ट 1 से कंटिन्यूसली इतनी मरतबा जो है ये वैल्यूज ये वैल्यूज जो है ये 0 1 2 3 ये पोर्ट 1 पे भिजवाता है कंटिन्यूसली। ये दूसरा छोटा सा प्रोग्राम है, ये क्या करता है, आस्की कैरेक्टर्स को भिजवाता है। तो आस्की कैरेक्टर्स पहले आपने एक अरे में डिफाइन कर लिए। ठीक है, अनसाइंड कैरेक्टर अरे, तो ये एक एक कैरेक्टर को भिजवाता है। ये लूपिंग भी आप पहले कर चुके हैं, अरेज भी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग न्यू।
सर ये ठीक है सर जी। जी, अनसाइंड करेक्टर मीन इसकी रेंज 0 से 255 तक है, ठीक है ना? ओके। अच्छा, देयर इज अनदर स्मॉल प्रोग्राम, राइट डाउन ए प्रोग्राम टू टॉगल ऑल बिट्स ऑफ P1। टॉगल का मतलब है कि 0 है 1 कर दे, 1 है तो 0 कर दे। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें फॉरएवर लूप है। आज यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्चुअली, सॉरी, ये लेट मी think I need to correct it. Hash include के बाद this is the thing. I'll in fact let me run it from here. I'm just wondering why it's been changed. Asha, let's. So this is how it was supposed to be. ठीक है, अब क्लियर नजर आ रहा है आपको? So you have include reg51.h and then void main void, जो कि नॉर्मली आपके C++ उसमें ये फंक्शन होता है, and for this is an infinite loop. I think you guys came across this as well before. जी? यस सर। ठीक है ना, ये जिस तरह वो OS jump का हम इनफाइनाइट लूप लगाते हैं या while one का इनफाइनाइट लूप लगाते हैं, ये उसी तरह for जब आप कंडीशन वगैरह नहीं स्पेसिफाई करते हैं, it will repeat forever. तो ये क्या करेगा 55। अच्छा, दूसरी बात, हम h लिखते थे फॉर हेक्साडेसिमल नंबर असेंबली में, ठीक है ना? यहाँ पे 0x लिखा होता है, दिस इज 0x। तो जब 0x किसी नंबर से पहले लिखा हुआ, इसका मतलब है इट इज हेक्साडेसिमल नंबर। यस यस सर। गुड। यस। So there is another program, write down a program to send values -4 to +4 to port 1। ठीक है, इस केस में हमने अनसाइंड नहीं लिखा, तो द करेक्टर्स आर हैविंग बोथ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू। अगर हम अनसाइंड लिखते तो इसमें फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिख सकते थे, ठीक है? अनसाइंड करेक्टर को हमने z के लिए यूज किया, इसलिए कि हम लूपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि 0 से 255 तक इसकी रेंज हो, एंड देन वी स्टार्ट सेंडिंग अगेन एरे में वैल्यूज डाल दी, इनिशियलाइज की, एंड देन वी सेंड इट 8 टाइम्स, 8 करेक्टर्स हैं, सो दे आर ऑल बीइंग सेंट टू द पोर्ट। सिंपल है ना? यस सर। यस सर, आसान है। यस सर। गुड गुड। अच्छा, इसी तरह इंटीजर है, आपको ऑलरेडी पता है अनसाइंड इंटीजर 16 बिट डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है, उसकी रेंज 0 से 65535 तक है, या हेक्साडेसिमल में दिस इज द रेंज। अगर साइंड हुआ तो देन इट्स रेंज इज फ्रॉम -32768 टू +36767। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज देन यूज्ड फॉर द साइन। ये चीजें भी आप लोग C++ में पढ़ चुके हैं, राइट? यस सर। यस यस सर। अच्छा, this is another example, write down a program to toggle bit D0 of port P1, mean P1.0 को 50,000 टाइम आप टॉगल करें, ठीक है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नया डेटा टाइप यूज किया S बिट, ठीक है, एक पर्टिकुलर पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसको नाम दे दिया my bit। सो my bit is equal to P1.0, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अनसाइंड इंटीजर z डिफाइन किया, इसलिए कि 50,000 काउंट है, so it has to be integer. We started from 0 and we are continuously sending 0 1 0 1 for 50,000 times. Simple है ना? Yes sir. यस सर। Good good. अच्छा, this is a detail। ये तमाम आपके पास जो डेटा टाइप्स हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग रेंजेस क्या है और कौन सी जो है क्या रेंज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये जब आप यूज करेंगे तो खुद ब खुद ये चीजें आपको याद आ जाएगी। जी, SFR रजिस्टर्स, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो रजिस्टर एक्यूमुलेटर है वगैरह, उनके अपने एड्रेसेस हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए SFR यूज होता है। वी विल बी यूजिंग दैट इन अ व्हाइल, ठीक है? यस। अच्छा, बाकी सी लैंग्वेज असल में जितने भी हम आगे डिफरेंट वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। हर एक जगह पे हम सी का एक प्रोग्राम और एक असेंबली का प्रोग्राम भी पढ़ेंगे, तो उससे क्लियर आइडिया आपको ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? एक चीज़ है कि सी लैंग्वेज में हमें ये नहीं पता होता कि एक इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेती है, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, तो इसमें एग्जैक्ट लूप से हमें पता नहीं चल सकता कि वो कितना टाइम लेगा, ठीक है ना? दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज एक्चुअली ऑफ सी लैंग्वेज। लेकिन हमारे पास टाइमर्स हैं, तो टाइमर्स को ऑन ऑफ करके हम एग्जैक्ट डिले जनरेट कर सकते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर एनीवे। अच्छा, there is another program, write down a C program to toggle bit P1 continuously forever।
with some delay. ठीक है, सो अगेन फॉरएवर का लूप है, लेकिन हमने एक छोटा सा एक लूप डाल दिया फॉर डिले। तो ये लूप क्या करता है, जब आप किसी भी फॉर लूप के आखिर में सेमीकोलन लगा देते हैं, इसका मतलब है ये सिर्फ अपने आप को रिपीट करता है। तो ये अपने आप को 40,000 टाइम रिपीट करेगा, इसका मतलब है ये कुछ डिले जनरेट करेगा। डिले जनरेट करने के बाद फिर ये ए भिजवाएगा, फिर डिले जनरेट करेगा एंड देन इट रिपीट फॉरएवर। ये प्रोग्राम आप रन करेंगे, यू विल सी योर एलईडीज ब्लिंकिंग ऑन पोर्ट P1। ठीक है, ओके सर, सिंपल है ना? यस सर। C is pretty simple. अच्छा, there is another one, write down a program to toggle bit P1 continuously with a 250 millisecond. अच्छा, ये इसने एज्यूम किया कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो 250 मिलीसेकंड का डिले जनरेट करेगा। इट्स नॉट सपोज टू एक्चुअली जनरेट दैट मच, ठीक है ना? हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसने एग्जैक्टली टाइम किया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है कि आप ये डिले को, इंस्टेड आप यहाँ पे लूप लिखने की जगह पे डिले को आप एक इंडिपेंडेंट फंक्शन के तौर पे लिख सकते हैं और यहाँ से उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो जिस तरह C++ में कोई भी फंक्शन अगर आपने यूज करना है, उसको पहले आप इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे किया हुआ है, नजर आ रहा है, ठीक है? या उस फंक्शन को आप मेन से पहले लिखेंगे, सेम रूल्स। यस सर, प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको डिक्लेयर कर दें एंड देन यहाँ पे आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये सिंपल फंक्शन किस तरह जनरेट होता है, आपको तरीका आता है ना? आपने क्या करना होता है, उसको दो डिफरेंट ब्रैकेट्स में डाल के उसको नाम दे दें, और क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा, कोई वैल्यू इसको आप सेंड तो नहीं कर रहे, ठीक है ना? इस केस में आप 250 इसको सेंड कर रहे हैं, तो वो 250 यहाँ पे आ जाएगा एंड देन इट विल बी यूजिंग इट हियर। इज इट क्लियर? यस सर, यस। Yes, sir. There is another small program. LEDs are connected to bits P1 and P2. Write an 8051C program to show the count from 0 to F. तो ये हमने इस केस में क्या किया कि डिफाइंड एलईडी, ये कांस्टेंट्स आपको याद है ना, हम कांस्टेंट के लिए डिफाइन यूज करते थे C++। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये एलईडी नाम दे दिया पोर्ट P2 को। तो जब भी आप एलईडी यहाँ पे एलईडी प्लस प्लस करते हैं, जो भी करते हैं, इट इज एक्चुअली मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ पोर्ट P2। ठीक है, so you can give names to individual ports। ठीक है। कांस्टेंट के लिए हम कांस्टेंट यूज नहीं करते थे। नहीं, दिस इज स्लैश डिफाइंड यूज होता है C++ में, यू रिमेंबर दैट? नो सर, हम CONST कर देते हैं। वहां पे कांस्टेंट यूज करते थे, यहाँ पे स्लैश डिफाइंड यूज होता है। कंपाइलर टू कंपाइलर है, स्लैश डिफाइंड भी यूज होता है, बात जगह पे कांस्टेंट भी यूज होता है। Yes, sir. ठीक है, दिस इज अनदर केस जहाँ पे आप डिले यहाँ पे वो किया हुआ है एंड देन यू कैन कॉल इट। सो राइट डाउन C प्रोग्राम टू गेट ए बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम पोर्ट P1। P1 से डेटा लेता है एंड देन सेंड इट टू पोर्ट P2। तो P1 से, अच्छा अगेन P1 को पहले एज एन इनपुट कॉन्फ़िगर करना होता है। सो प्रोग्राम से पहले आपने उसमें FF की वैल्यू डालनी होती है। नजर आ रहा है ना? 0x FF। यस सर। तो ये सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम है एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस गो थ्रू दीस स्लाइड्स एंड प्रैक्टिस on them. Then in the next class we will discuss it in case there is any slide that you guys want to have a look back to and want to discuss it. ठीक है ना? Okay, These sir. are different छोटे छोटे प्रोग्राम्स है जिसपे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? I have already shared them on the website. जी प्लीज। सर इसको हम अपने लैपटॉप पे रन कर सकते हैं, कुछ हमें कुछ नजर आए? बिल्कुल रन कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको पता है किधर रन करना होगा? इसको आप कील में रन करेंगे, उससे हेक्स फाइल जनरेट करेंगे, वो हेक्स फाइल आप कंट्रोलर में डालेंगे प्रोटियस में और वहां पे रन करेंगे। ठीक है सर, क्या करेंगे? बहुत लंबा किस्सा है, वैसे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, उसमें मैंने बता दिया कि क्या करना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। good anything else you guys want to discuss? स्लाइड हमारी क्लास में भी दें। Sure I'll do that. Let me stop the recording and